اب بھارت جس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے افغانستان، جہاں سے پوری پالیسی بن کے آتی ہے، پراکسی وار جو چل رہی ہے، بھارت کو نکل ڈالنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مزید اپنی پالیسی میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟ سفارتی سطح پہ اگر ہم بات کریں، سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کے میڈیا کو مزید کھل کر کتنی بات کرنی ہوگی تاکہ دنیا کو اویئرنیس دی جا سکے؟ دیکھیں، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اب کافی کام کر رہا ہے، اور خاص طور پہ جو انگلش نیوز ہیں وہ اب میرے خیال میں کافی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے ہمارے سوشل میڈیا بھی بڑا، میرے خیال میں آج دیکھ لیا جائے تو وہ اس کارروائی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ عوام جو ہے ماں سوائے چند ایک جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں جن کا علاج ڈنڈا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی علاج مل جائے گا ان کو بالکل، اور بالکل صبح دوپہر شام ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات جو اس کے اندر آ گئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اتنا خوش نہ ہو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ہوشیار بھی ہے اور پاکستان جو ہے سمجھدار بھی ہے۔ باقی اللہ کی لاٹھی کو آپ دیکھیں تو کیسے وہ آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام جو ہے جس طریقے سے الفا والے کاروائیاں کر رہے ہیں اس ٹائم پہ ملٹری بیسز کے اوپر بھارت کے، اور جس طرح وہاں آزادی کے نعرے لگ چکے ہیں، وہاں جو ہے وہ نئی کرنسی متعارف کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھارت جو ہے وہ 36 کلومیٹر کا ریلوے ٹریک جو ہے وہ 20 کلومیٹر کی جو شلیگوری جو کوریڈور ہے اس کے اوپر، جس کو چکن نیک کہا جاتا ہے عرف عام میں، وہاں وہ بنا رہا ہے۔ یہ 7 ریاستیں تو بھارت کے حوالے سے نکل چکی ہیں۔ چائنا نے اپنا جو آپ کو پتہ ہے اروناچل پردیش کا نام تبدیل کر کے جو ہے وہ چائنیز لینگویج میں رکھ دیا ہے، اور وہاں اس کو ہسٹوریکلی اپنا علاقہ جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے بنگلہ دیش کے اندر جو عوام ہیں، جو کہ خاص طور پہ سٹیزنز نیشنل پارٹی ہے جو نئے جین زی کی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں، یہ ہمارے ساتھ الحاق ہونے چاہیے۔ تیسری جانب جو ہے نیپال، چین اور جو بنگلہ دیش ہے، یہ اس کا کوریڈور یہ بنتا ہے۔ تو بھارت کے ہاتھ سے تو یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے اگر آپ سکھ جسٹس موومنٹ کو دیکھ لیں، سکھ فار جسٹس، تو اس کے اندر اس ٹائم پہ بھارت کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ لگ گئے ہیں۔ ابھی جو تقریباً اس نے $20 سے $25 جو ہے وہ کم، جو مہنگا تیل جو ہے رشیا کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ وہاں سے لینا شروع کر دیا ہے، وینیزویلا اور امریکہ سے بھارت نے، تو یہ ایک ان کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ جو لوگ ان کو جو کہہ رہے تھے کہ جی معاشی بڑا استحکام ہے، تو بھارت کے اوپر جو 50% ٹریڈ ٹیرف کر کے 18% کیا گیا ہے، تو ذرا تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں جب ان کے اوپر 3% ٹریڈ ٹیرف تھا، 3%۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ 3% زیادہ تھا یا 18% زیادہ ہو گیا، تو بھارت نقصان کے اندر جا رہا ہے۔ تیسری جانب جو ہے وہ اس کا جو تمام کا تمام انڈسٹری ہے وہ فیول کے اوپر ظاہر ہے چل رہی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اس کو ہو رہا ہے۔ تو بھارت کو نکیل پوری ڈل رہی ہے، قدرتی طور پر ڈل رہی ہے۔ عالمی سطح کے اوپر جس طرح سے RSS کا بیانیے کو جو ہے لوگ جو ہے آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، سیفرون ٹیررزم کہلوا رہے ہیں ان کو، اسی طریقے سے نریندر مودی کا جس طریقے سے بھد اڑایا جا رہا ہے ایپسٹین فائل کے اندر، نریندر مودی کے جو ابھی جو خود راہل گاندھی کہہ رہا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نریندر مودی کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ گھاٹے کے سودا امریکہ کے ساتھ کرے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی چیز ہے جو نریندر مودی کے بال برہمچاری ہونے کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں سوالیہ نشان اٹھا دے گی، جس کی بنیاد کے اوپر نریندر مودی ایپسٹین فائل کے اندر بلیک میل ہو رہا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بھارت کو مصیبت میں ڈال رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھارت جو ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو کسی صورت جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے ڈاکٹر فضا، یہ یاد رکھیں میری بہن کہ اس ٹائم پہ امریکی بحری بیڑے جو یہاں موجود ہیں، ان کا فائدہ اٹھا کے بھارت کوئی نہ کوئی لچ ضرور تلے گا۔ اچھا عبداللہ بھائی، یہ جو واقعی ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، جنگ میں کس طرح انہوں نے منہ کی کھائی، اور ٹرمپ صاحب باقی بارہا ان کو طیارے گنواتے رہتے ہیں، ان کو ان کی اصلیت، ان کی اوقات بتاتے رہتے ہیں، اور یہ پھر فرسٹریشن نکالتے ہیں کبھی کرکٹ کے میدان میں۔ کرکٹرز پہ اب دیکھیں نا، ان پہ فرسٹریشن نکالی جا رہی ہے، وہاں پہ کوئی اگر اداکار مسلمان ہے تو ان کے جو بہت ایلیٹ علاقے ہیں جہاں پہ وہ اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، گھر لینا چاہتے ہیں، ان کو گھر لینے کی اجازت نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ان کے شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہوتا ہے۔ کبھی یونیورسٹی کی طالبات کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، کبھی کرکٹ کے میدانوں میں فرسٹریشن نکالی جا رہی ہے۔ یہ پھر فرسٹریشن اپنی نکالتے ہیں، یعنی شکست خود مان چکے ہیں۔
जी, शिकस्त तो देखें वो मान चुके हैं, उनको पता है अच्छी तरीके से, अंदर खाते तो सबको पता होता है ना कि क्या हुआ है। अभी ये देखें ना, जब भी हुआ भारत के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने बोला, कोई एक जगह, अभी मैं इंडिया टुडे के ऊपर आया हुआ था, तो मैंने कहा कि मुझे एक जगह कोट कर दो, जहां इंटरनेशनल अरीना ने ये बात कही हो कि जनाब पाकिस्तान को मार पड़ी है। तो एक जगह पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं हुई, तुम्हारी मार की बात हुई है, तो वो देवर स्पीचलेस, उनके पास कोई बातचीत नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो, आप अगर इसको देखें कि जो उनकी शिकस्त है वो तो उनको खुद नजर आ रही है। देखें, मैं नहीं कह रहा, जनरल जाहिद साहब नहीं कह रहे, डॉक्टर फिजा नहीं कह रही, बल्कि द हिंदू अखबार 31 दिसंबर 2025 को कह रहा है, सदी का सबसे बुरा तरीन साल। अब ये वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरली, ये वो कह रहा है अखबार के हमारा सबसे, जो सदी का सबसे बुरा तरीन साल है। अब ये मायोपिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं, नैरो माइंडेडनेस के साथ चल रहे हैं, हिंदुत्व को ये जो है वो प्रचार कर रहे हैं, हेट को जो है वो ये बढ़ा रहे हैं, आरएसएस की जो थ्योरी है उसको ये सामने ला रहे हैं, चाणक्य के ऊपर जो है ये पूरी तरीके से जो है वो अमल पैरा है। नतीजा ये निकल रहा है कि ये आज की दुनिया में नफरतें फैला रहे हैं, और नफरतें फैलाने का सिलसिला पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया में भी जा मिलता है, ये जो है आपको कतर और अमेरिका और कनाडा में भी मिलता है, बर्तानिया में भी मिलता है, ये आपको जो है वो श्रीलंका, नेपाल और मालदीव में भी मिलता है, भूटान में भी मिलता है। ये खत्म नहीं हो रहा है इनका। और फिर नफरतें यही नहीं खत्म हो रही, ये इनके अपने दलित जो हैं उनके खिलाफ नफरत है, उनके जो क्षत्रिय हैं उनके खिलाफ नफरत है, वेश हैं तो उनके खिलाफ नफरत है, जो दीगर अकलियतें हैं, जो क्रिश्चियन हैं। अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ही देख लें कि दुनिया का सबसे ज्यादा अकलियतों का इस्तेहसाल करने वाला मुल्क जो है वो भारत है। अब ये बातें तो वो खुद कह रहे हैं, और फिर इनकी जो इकोनॉमी है, जो बातें कर रहे हैं कि जनाब हमारी इकोनॉमी, 40% of entire wealth of India belongs to 1% of business community in भारत। अब आप मुझे ये बताएं, 40% पैसा जो है वो ये इनका है। दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टियां इनकी हैं। ये असल में बॉलीवुड फिल्म है। जब वो बॉलीवुड फिल्म में सनी देओल आता है और वो जनाब वो पूरा पाकिस्तान को बांध के ले जाता है, मुझे और आपको बांध के ले गया रस्सी में, लेकिन जब वो वाघा बॉर्डर के ऊपर हमारे 7 फुट के जो रेंजर के सिपाही खड़े हैं, जब उनके साथ खड़ा है तो उसकी तस्वीर आप देखें, यूं खड़ा है, यूं ऐसे वो डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा है। वो ये सच के मैदान में खड़े हो तुम, ये फिल्मी मैदान नहीं है। खुदा के लिए बॉलीवुड की जो फिल्म थ्योरी है उससे बाहर आ जाओ। जब भी ये राइट लिखवाते हैं, जब भी ये राइट अप लिखवाते हैं, किसी थर्ड रेट किस्म के जो है ना, वो जो बिल्कुल सी क्लास फिल्मों के सी क्लास राइटर से ये लिखवाते हैं। कोई मेरे ख्याल में सोनो टीवी से लिखवा लें, हो सकता है शायद इनको वो बेहतर वो लिखवा दें। इतना घटिया स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी को लिख दिया, मतलब क्या अभी वो एक बिल्कुल ही चीप किस्म के लोग, चीप किस्म की बातें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप तो उनकी फिल्मों की बात कर रहे हैं ना, आप तो उनके स्क्रिप्ट राइटर की बात कर रहे हैं कि उनको अपना स्क्रिप्ट राइटर थोड़ा बेहतर चूज करना चाहिए, और बड़ी अजीबोगरीब सी जो हरकतें करते जागसाई का सबब बनते हैं। ये जो भी हाल ही में उन्होंने एडवेंचर किया था, उसके बाद इनका मीडिया जो कर रहा था, आपने देखा था, वो किसी फिल्म से ज़्यादा लाइव एक लाइक कॉमेडी शो चल रहा था, और उसमें क्या आप हम सबको उन्होंने 2-2 3-3 दफ़ा मार दिया था। जी जी, ये वो तो बेचारे बंदरगाह पे पहुंच गए थे, लाहौर की। जी। कमाल है, आपने मतलब हाँ, लेकिन हम सब तो जिंदा थे। आप लोग वो हमारी रूहें हैं, असल में हम जिंदा नहीं है, हम रूहें हैं हमारी। वो तो मार चुके हैं, पाकिस्तान तो खत्म, पाकिस्तान कब्जा कर चुके हैं, जहाँ वो बैठे हुए हैं। फॉर गॉड सेक, ये अपनी तो मैं कह रही थी जो फिल्म में क्या होता है ना, उन्होंने रियलिटी में भी फिल्म चला के दिखाई थी, इंतहाई फनी। ये इनके जो चीप प्रोपेगेंडे हैं, इनसे दुनिया नहीं इंप्रेस होती। मॉन्डे अखबार को देखें, फ्रांस का, जो राफेल गिरने की बात कर रहा है। आप वैसे सलाम है एमेनुअल मैक्रोन को, जिन्होंने मजीद 114 जहाज जो है वो साइन कर लिए हैं। बावजूद इसके मेरे ख्याल में मैक्रोन साहब जो है वो चाहते हैं कि गिरते रहें और आते रहें, कुछ ऐसा शायद ये उनके देन में हो। लेकिन बहरहाल मकसद यहाँ ये है कि
जो इनका आज इनका तेजा जहाज क्रैश कर गया है, पूरे तेजा की फ्लेट को इन्होंने जो है ग्राउंड कर दिया है। ये वो तेजा था जिसके ऊपर इनके अरमान जो थे वो उसी तरीके से जो है वो जवाल पजीर हुए जिस तरह तेजा जवाल अच्छा, पजीर ये वैसे हुआ। आपने अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बांग्लादेश ने तो वहाँ की आवाम ने भी बड़ा पहले सफ़र भी किया, लेकिन बाद में बड़ी, आप अक्सर मुजाहिदा का लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोगों के लिए मुजाहिद, तो ये बड़े मुजाहिदों वाला किरदार उन्होंने अदा किया है कि उन्होंने जान छुड़वाई इनकी इजारादारी से, इनकी जो प्रॉक्सी थी हसीना साहिबा, और जिस तरह वहाँ बांग्लादेश में चलता रहा। अब जो बांग्लादेश की नई क़यादत है उससे बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको गो कि उन्होंने कहा कि हम सब ममालिक के साथ अपनी बेहतरीन खारजा पॉलिसी लेकर चलेंगे और उसमें वो भारत के साथ भी मुनासिब और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कि वो भारत से प्रेशराइज नहीं होना चाहते और भारत की इजारादारी नहीं चाहते कि भारत उनको कंट्रोल करे, जैसे कि पुरानी क़यादत को किया जा रहा था। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना इस खत्ते में बड़ा एक ब्लॉक बन सकते हैं आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल करीब में, और जारी बात है कि भारत को नकेल पड़ेगी? जी, ये बिल्कुल ये तो होना है, इट इज रिटन ऑन द वॉल। मैं एक पिछले वाले सब्जेक्ट पे छोटा सा एक कमेंट कर दूं। देखें, भारत का जो सबसे बड़ा इशू है इस टाइम पे, उनकी एयरफोर्स के लिए उन्होंने 500 कोई तकरीबन 80 जो सीटें थी वो आई थी। इतना बड़ा भारत है। आपको पता है कि टोटल 450 जो है वो लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। भारत को जरा देखें, 1 अरब और 40 करोड़ की आबादी को देखें, 580 नशिस्तें देखें और 450 लोगों का उसके अंदर जो है एप्लीकेशन देना, दिस इज रिटन ऑन द वॉल। सेकेंडली जो है वो कन्वेंशनल, जैसे जनरल साहब ने बात की थी, कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए नहीं तैयार। उनका जो है इंसर्जेंसी या लाइट जो वेपन्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग है। अब जो आपने बांग्लादेश के हवाले से बात कही है, देखें बांग्लादेश के हवाले से जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि अमेरिका उनको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर डील कर रहा है, जो कि बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो भारत से बगावत कर चुका है, और उसके नतीजे में जो अभी उन्होंने ट्रेड के हवाले से कहा है, यानी कि भारत के ऊपर जो है वो 18% जो है वो टैरिफ है, जबकि बांग्लादेश में कहा है कि गारमेंट इंडस्ट्री के लिए अगर आप यार्न और कॉटन हमसे खरीदेंगे तो हम 0% टैरिफ जो है आयद कर देंगे। दिस इज अ ग्रेट ब्लो टू इंडियन यार्न एंड कॉटन इंडस्ट्री, जो कि धागे के ऊपर चल रही है। दूसरी जानिब जो है वो आप जरा वो देखें कि जिस तरह से चाइना ने जो है बात की है, क्योंकि आबनाए मलाका जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाका है वो एक चाइना का, जिस तरह से आबनाए हुर्मुज एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, तरीके से आबनाए मलाका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, और बांग्लादेश का उसका एक किरदार बन रहा है। और फिर दरिया ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो इस टाइम पे पानी का इशू आ रहा है, वो बांग्लादेश के लिए जो है वो जाहिर है फैसिलिटेट करेगा चाइना, और भारत जो है वो उसके अंदर मारा जाएगा, कैजुअलिटी बन जाएगा। भारत ने वक्ती तौर पे बहुत सारे गेन्स किए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर वो ये भूल गया कि बांग्लादेश एक नजरियाती मुल्क है, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान की आजादी का तब नारा लगाया था जब पाकिस्तान में लोगों को पता भी नहीं था आजादी का नारा तब लगा चुके थे। उन्होंने भारत के तसल्लुत, उस चाणक्य की सोच, उस हिंदुत्व का माइंडसेट, उस जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो परिवार है उसकी नेगेटिविटी के अंदर जो है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा की बुनियाद पे नारा लगाया था, और उन्होंने आजादी का हसूल करके दिखाया था। और जब उनको ये पता चला कि हसीना ने उनको वापस उसी जगह पे, और जो उसके वालिद थे उसने उन्हीं भारत की गुलामी में दोबारा डाल दिया, तो आज वहां जैन दी जो थी उसने इनकलाब बपा किया, और नतीजा यह हुआ कि आज वो तारिक रहमान जो है वो बरसरे इक्तदार में आ गए, जिनको जो है ताहयात जो है वो कैद की दे दी। तो ये एक कॉरिडोर जो है, ये जो एक नया ब्लॉक है, ये बिल्कुल बन रहा है, ये बनेगा। भारत के साथ उनके अपने मरासिम जो वक्ती हैं वो चलेंगे, लेकिन याद रखें भारत हैज ऑलरेडी लॉस्ट दैट एरिया।